السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی 7,994 نئے کیسز ہوئے درج، 58 افراد کی ہوئی موت۔ 30 عمل لاک ڈاؤن پر حکومت کا سنجیدگی سے غور، وزیر داخلہ محمد محمود علی کا جائزہ اجلاس، ادویات کا ذخیرہ نہ کرنے عوام سے اپیل، قواعد پر سختی سے عمل آوری کا مشورہ۔ کورونا تلنگانہ میں آئندہ 4 ہفتے اہمیت کے حامل، ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ جی سنواس راؤ۔ ماسک نہیں تو ووٹ نہیں، الیکشن کمیشن کے احکامات۔ 2 کارپوریشن اور 5 میونسپلٹیز میں 30 اپریل کو رائے دہی، 3 مئی کو ووٹوں کی گنتی، پارتھا سارتھی۔ گاندھی ہاسپٹل میں نعشوں کے درمیان علاج سے دہشت، ICU میں فوت ہونے والوں کو منتقل کرنے میں انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی۔ تلنگانہ میں آکسیجن کی قلت پر قابو پانے میں حکومت کامیاب، دیگر ریاستوں کے علاوہ داخلی پیداوار میں اضافہ، سرکاری دواخانوں میں آکسیجن سے مربوط بستروں کی تعداد میں اضافہ۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر ایم سری لتا شوبھن ریڈی بھی ہو گئی کورونا وائرس سے متاثر۔ کانگریس پارٹی کی کووڈ ٹاسک فورس کے صدرنشین ایم ششی دھر ریڈی نے وزیر صحت اٹالہ راجندر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے گچی بولی ہاسپٹل میں بے قاعدگیوں کی شکایت۔ MGM اسپتال ورنگل میں 21 گھنٹوں کے دوران 27 اموات، ریاستی وزیر ارابلی دیاکر راؤ کا دورہ کووڈ وارڈ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں کورونا کے تیزی سے بڑھتے معاملات کے درمیان ریاست میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے ضمن میں رائے عامہ تقسیم ہوئی ہے۔ کاروباری حلقے مکمل پابندیوں کے تباہ کن اثرات کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن سے خوفزدہ ہیں۔ دوسری جانب خوف و ہراس کے شکار عوام لاک ڈاؤن سے کچھ کم نہیں چاہتے، کیونکہ وہ عوام کی لاپرواہی اور کورونا کے قواعد کو نظر انداز کرنے کے برتاؤ سے امیدیں کھو چکے ہیں۔ ریاستی حکومت واضح طور پر لاک ڈاؤن کو مسترد کرنے کے بعد ابھی بھی اپنے موقف میں تبدیلی لانے میں مائل نظر آتی ہے۔ حالانکہ کورونا معاملے کا بوجھ خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا اور ماہرین نے پیش قیاسی کی ہے کہ دوسری لہر مئی کے دوسرے ہفتے کے آس پاس عروج پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی حق نظر نہیں آ رہی۔ اس کے مطابق اگرچہ ریاستی حکومت کو تیز اور غضبناک دوسری لہر پر تشویش ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ریاستی حکومت کا خیال ہے کہ ایک لاک ڈاؤن سے لوگوں کو کاروبار اور صنعت کو مزید نقصان پہنچانے والی پہلی لہر سے پیدا ہونے والے مالی بحران میں مزید شدت آئے گی۔ اس کے بجائے ریاستی حکومت کووڈ مناسب رویے پر سختی سے عمل درآمد کرے گی، جس میں ماسک پہننا، ہاتھوں کی صفائی کرنا اور دوسروں کے ساتھ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا، تمام دکانوں اور اداروں کو بند کرنا فی الحال کوئی متبادل نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پہلے ہی رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے، لیکن کچھ حلقوں سے یومیہ کرفیو نافذ کرنے کا مطالبہ بڑھ رہا۔ جس طرح مرکز نے ریاستوں پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ ضلع، منڈل، شہر، وارڈ سطح پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کریں، جس کی بنیاد کووڈ-19 سے متعلق زمینی حقیقت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ریاست میں کورونا کی دوسری لہر کا قہر جاری ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور اموات میں دن بدن نیا ریکارڈ قائم ہو رہا، جس کے پیش نظر تلنگانہ حکومت ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن پر سنجیدگی سے غور کر رہی۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست میں کورونا کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکرٹری روی گپتا، DGP مہندر ریڈی کے علاوہ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار،
IPS, पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत, पुलिस कमिश्नर साइबराबाद VC सज्जनार, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। जराये से पता चला है कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 30 अप्रैल के बाद रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने पर संजीदगी से गौर कर रही। चीफ मिनिस्टर KCR भी कोरोना से मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। वो कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे, जिसके बाद लॉकडाउन से मुतालिक खतई फैसले का इम्कान है। आज तमाम पुलिस ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, DGP साहब और तीनों कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया गया था ताकि कोरोना के इंतजामात के सिलसिले में और कोरोना में होने वाले जो परेशानियां हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज आ रहा है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शॉर्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफ़िल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में ख़रीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं मगर वो आवाम के लिए तकलीफ़ हो रही। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। महकमे सेहत ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में मई के अख्ताम तक कोरोना का कहर उरूज पर रहेगा, लिहाजा अवाम को आइंदा 4 हफ्तों तक सख्त चौकसी अख्तियार करनी चाहिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के मुस्बित नताइज बरामद हुए, ताहम कोरोना के कहर में कमी के लिए मज़ीद 4 हफ्ते दरकार हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते मौजूदा सूरत हाल में सब्र आजमा साबित होंगे, लिहाजा अवाम को चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होगा, लिहाजा अवाम को अपने लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करना होगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के जरिए अवाम न सिर्फ कोरोना से बच सकते हैं बल्कि दूसरों में वबा फैलाने का सबब बनने से भी बच जाएंगे। रियासत में 2 कॉरपोरेशंस और 5 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा है कि मास्क न लगाने वाले राय दहिंदों को वोट देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही इंतखाबी अमले के लिए मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड को लाजमी करार किया गया है। 2 कॉरपोरेशंस वरंगल और खम्मम के अलावा 5 म्यूनिसिपैलिटीज सिद्दीपेट, जडचल्ला, अचमपेट, कोतूर और नुकरीकल के इंतखाबात के लिए मंगल को शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची है। 1 हफ्ते तक तमाम सियासी जमातों ने तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाई। 30 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमलावरी की जा रही। राय दहिंदों को हिदायत दी गई कि वो लाजमी तौर पर मास्क लगाकर पोलिंग बूथ पहुंचे, वरना उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे ta शाम 5 बजे तक रायदही मुकर्रर है। 3 मई को वोटों की गिनती होगी। रायदही से एक दिन कबल तमाम पोलिंग मराकज को सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। साथ ही इंतखाबी अमला और राय दहिंदों के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया। समाजी दूरी बरकरार रखने के अहकाम जारी किए गए। रायदही मराकज के लिए जिस तरह वसीतर मंसूबा तैयार किया गया है, इस तरह वोटों की गिनती के लिए भी वसी मंसूबा तैयार किया जा रहा। रियासती हुकूमत की महकमे सेहत की निगरानी में चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में शरीक मरीजों में खौफ व दहशत पैदा होने लगा है, क्योंकि ICU में दौरान इलाज फौत होने वाले कोरोना वायरस के मरीजों को फौरी ICU से मुंतकिल करने के बजाय उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर छोड़े जाने के सबब दीगर मरीज जो कि ज़र इलाज हैं, वो खुद को नाशों के दरमियान महसूस कर रहे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले हजारों मरीज अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए मखसूस गांधी अस्पताल में ज़र इलाज हैं। उन
मरीजों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा और कई घंटों तक मरीजों के बिस्तरों से मुत्तसिल बिस्तरों और स्ट्रेचर पर फौत होने वालों की नाशों को छोड़ दिए जाने के सबब ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों में खौफ पैदा होने लगा है। फौत होने वालों को मुंतकिल करने वाले दवाखाने के अमले के जिम्मेदारों ने बताया कि नाकाफी अमला और 3 अलग-अलग शिफ्टों में मुसलसिल काम के सबब इस तरह की कोताहियां हो रही हैं और इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अमले की किल्लत को दूर करते हुए नीम तिब्बी अमले के अलावा दीगर अमले की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जाएं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी कोरोना से मुतासर हो गई हैं। डिप्टी मेयर को मामूली अलामत के बाद टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव निकला। डॉक्टर्स के मशवरे पर डिप्टी मेयर होम क्वारंटाइन हो चुकी हैं और अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं। उनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वालों को टेस्ट कराने का मशवरा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना के दोनों टीके लेने के बाद भी डिप्टी मेयर कोरोना से मुतासर हो गयी। उन्होंने 20 अप्रैल को ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर लालागुड़ा में दूसरा टीका लिया था। डिप्टी मेयर ने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऑक्सीजन जो हंगामी हालत में है, ऑक्सीजन कोरोना मुतासर अफराद के लिए संजीवनी बन गया है। शदीद अलामात में मुब्तला अफराद की जिंदगियां बरकरार रहें। पहले मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि 25 साल की उम्र के बच्चों को भी देना पड़ रहा। जो लोग रंगारेड्डी जिले के नवाही गांव जलपल्ली गांव में ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑक्सीविजन मेडिकल सर्विसेज प्लांट में इमरजेंसी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो एम्प्टी सिलेंडर्स लेकर आते हैं, जिसमें उन्हें ऑक्सीजन भर कर दिया जा रहा। निजी अस्पतालों और इंचार्ज ने बताया कि इस प्लांट से कुछ हुकूमत को और ऑक्सीजन भी मुहैया की गई है। कंपनी है भैया, ये कंपनी में क्या है, हर चीज़ का ख्याल रख के हर एक आदमी को सिलेंडर दिया जा रहा है। ज़्यादातर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, मैक्सिमम जैसा कि देवलकोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुंडापुर एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मलकपेट एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर तो केसेस क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रहने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी किया जा रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की कोविड टास्क फोर्स के सदरनशीन एम शशिधर रेड्डी ने वजीर सेहत इटाला राजेंद्र को मकतूब रवाना करते हुए गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट के बारे में मुख्तलिफ शिकायत मिल रही हैं और अखबारात ने डॉक्टर्स की नाअहली और तसाहिल से मुतल्लिक खबरें शाये की हैं। मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी के वाक़यात पेश आए हैं। शशिधर रेड्डी ने मुख्तलिफ मिसालें पेश करते हुए
کہا ہے کہ ٹمس میں مریضوں کی دیکھ بھال حتیٰ کہ کمرے کی صفائی کے لیے اسٹاف کی جانب سے علیحدہ رقم کا مطالبہ کیا جا رہا، 500 تا 2000 روپے ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے ادا کرنے پر اصرار کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں کینٹین کی غذا انتہائی ناقص ہے اور عوام باہر سے غذا حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ اسٹاف کی جانب سے بیرون غذا کے حصول پر پابندی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نامپلی سے گچی بولی تک مریض کی منتقلی کے لیے 15,000 روپے وصول کرنے کی شکایت ملی ہے۔ اس کے علاوہ بستر کی دستیابی تک ایمبولینس میں انتظار کرنے کے لیے اضافی 4,000 روپے وصول کیے گئے۔ ٹمس میں ڈاکٹرز کے علاوہ دیگر اسٹاف کے بارے میں کئی شکایات موصول ہو رہی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کو 3 تا 31 مئی گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ ہنگامی نوعیت اور ضروری درخواستوں کی سماعت کے لیے بعض ویکیشن کورٹ قائم کی گئے ہیں۔ جسٹس سری دیوی اور جسٹس اے ابھیشیک ریڈی 6 اور 13 مئی کو اہم درخواستوں کی سماعت کریں گے۔ جسٹس ٹی ونود کمار ان دونوں ایام میں سنگل کورٹ میں سماعت کریں گے۔ ویکیشن بینچوں پر سماعت کے لیے 4 اور 11 مئی کو درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے پندرواڑہ میں جسٹس ابھینند کمار شاولی اور جسٹس بی وجے سین ریڈی 20 اور 27 مئی کو سماعت کریں گے۔ جسٹس کے لکشمن ان ایام میں سنگل بینچ پر سماعت کریں گے۔ 18 اور 25 مئی کو درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ کورونا وائرس کے 7,994 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کی کل تعداد 4,27,960 ہو گئی۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 58 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ عادل آباد میں 133 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے، بھدرادری کوتاگوڑم میں 131، جی ایچ ایم سی میں 1,630، جگتیال میں 238، جنگاؤں میں 67، جے شنکر بھوپال پلی میں 52، جوگلامبا گدوال میں 62، کاماریڈی میں 174، کریم نگر میں 197، کھمم میں 213، کمرم بھیم آصف آباد میں 83، محبوب نگر میں 263، محبوب آباد میں 78، منچریال میں 201، میدک میں 117، میرچل ملکاجگری میں 615، ملگو میں 47، ناگر کرنول میں 206، نلگنڈا میں 424، نارائن پیٹ میں 56، نرمل میں 152، نظام آباد میں 301، پیداپلی میں 112، راجنا سرسلہ میں 144، رنگاریڈی میں 558، سنگاریڈی میں 337، سدھی پیٹ میں 269، سوریا پیٹ میں 264، وقار آباد میں 207، وناپرتی میں 174، ورنگل رورل میں 163، ورنگل اربن میں 162، یدادری بھونگیر میں 164 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کے لیے سرکاری و خانگی دواخانوں میں آکسیجن کی قلت کا سامنا ہے، لیکن تلنگانہ حکومت نے جنگی خطوط پر اقدامات کرتے ہوئے آکسیجن کی قلت پر نہ صرف قابو پا لیا بلکہ وافر مقدار میں اسٹاک کیا گیا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کورونا کے علاج کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کے تحت میڈیکل آکسیجن کی دستیابی کو اولین ترجیح دی گئی۔ ریاست کے علاوہ دیگر ریاستوں اور مرکز سے آکسیجن کے حصول کے علاوہ داخلی سطح پر پیداوار کے ذریعے قلت پر قابو پایا گیا۔ حکومت نے کیسز کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ای ایس آئی ہاسپٹل ناچارام کے 550 بستر اور نمس کے 200 بستروں کو کورونا علاج کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریاست میں آکسیجن کی طلب 260 تا 270 میٹرک ٹن کے درمیان ہے۔ مرکز کی جانب سے ریاست کو مختلف صنعتوں کے ذریعے 370 میٹرک ٹن آکسیجن الاٹ کی گئی۔ تلنگانہ میں داخلی طور پر پیداوار کی صلاحیت میں 120 میٹرک ٹن تک اضافہ کیا ہے۔ بیلاری اسٹیل پلانٹ سے 70 میٹرک ٹن آکسیجن اضافی طور پر حاصل کی جا رہی۔ اس طرح ریاست میں 470 میٹرک ٹن آکسیجن دستیاب ہے، جو کورونا کی دوسری وبا سے نمٹنے کے لیے کافی ہوگی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे किए जा रहे, लेकिन शहर हैदराबाद में जहां सबसे ज्यादा मरीजों की निशानदही होने लगी है और अब पुराने शहर में मरीजों की निशानदही के साथ अमवात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से पुराने शहर में किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम करने के इक़दामात नहीं किए गए, बल्कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में सिर्फ किंग कोठी दवाखाना एक ऐसा दवाखाना है जहाँ हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन बिस्तर की सहूलत फराहम की जा रही, जबकि पुराने शहर में तारीख चार मीनार के दामन में मौजूद शिफा खाना यूनानी निजामिया तिब्बी कॉलेज में हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस केयर सेंटर कायम किया गया और इस मरकज को करंतना के मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा, लेकिन इस 180 बिस्तरों वाले करंतना के मरकज में कोई सहूलत मौजूद नहीं, बल्कि 180 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी करंतना मरकज कायम कर दिया गया है, लेकिन एक भी ऑक्सीजन बिस्तर मौजूद नहीं है, जो कि साबित करता है कि रियासती हुकूमत का पुराने शहर के साथ सौतेला सुलूक हमेशा से रहा है। और अब जबकि हालात इंतहाई नागुफ्ता बाज हो चुके हैं, ऐसे में भी पुराने शहर में एक भी ऐसा सरकारी दवाखाना नहीं है जहां ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की जा रही और खानगी दवाखानों में यौमिया 15,000 से 1 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है, जो कि पुराने शहर के बेशतर शहरी अदा करने के मौक़िफ में नहीं है। और शहरियों की जानिब से सवाल न किए जाने का नतीजा ये है कि हर कोई इस सूरत हाल में अपने घरों में मौजूद मरीजों को दवाखाने ले जाने के बजाय घर पर ठीक करने की कोशिश कर रहा और इसके लिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दरकार है, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हासिल नहीं हो पा रहे हैं, जो कि इंतहाई तकलीफदा है। शहर हैदराबाद के 7 अजला में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही। गुज़िश्ता 21 घंटों के दौरान वरंगल के MGM अस्पताल में 27 अफराद की मौत वाक़ हो गई। रियासती वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्यात ई दयाकर राव ने MGM अस्पताल पहुंचकर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया और अमवात पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि लम्हे आखिर में मुतासरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे, जिसकी वजह से अमवात की शरह में इजाफा हो रहा। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची है। कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा हो जाने से इंतखाबी अमले में डर व खौफ की लहर पाई जाती है और वरंगल के MGM अस्पताल में कोरोना से मुतासर होकर इलाज के लिए रुजू होने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो गया है। इतला मिलते ही वजीर ई दयाकर राव MGM अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर से मुलाकात करते हुए ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया, मुतासरीन की जान बचाने के लिए तमाम इक़दामात करने की हिदायत दी और हॉस्पिटल की तिब्बी सहूलतों का भी जायजा लिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना के इलाज के सिलसिले में हुकूमत को अहम हिदायत जारी की है। कोरोना मरीजों को इलाज की सहूलतों के बारे में समाजी जहदकार सुरेश और आंध्र प्रदेश सिविल लिबरेटरीज एसोसिएशन की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों की हाई कोर्ट में समाअत की गई। अदालत ने हिदायत दी कि दवाखानों में मरीजों को दी जाने वाली इलाज की सहूलतों, फीस की वसूली और दीगर उमूर की निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील किया जाए। दवाखाने में मरीजों की तादाद, खाली बिस्तरों और दीगर तफसीलात हर दवाखाने की नोटिस बोर्ड पर फराहम की जाए। हुकूमत को हिदायत दी गई है कि कोरोना के इलाज के लिए दरकार अद्वियात, खास तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर तफसीलात के सिलसिले में रोजाना जायजा इजलास मुनक्किद किया जाए। हुकूमत को हिदायत दी गई कि ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं। हुकूमत ऑक्सीजन की सरबराही का रोजाना आला सतह इजलास में जायजा ले। अदालत ने आइसोलेशन मराकज की तादाद में इजाफे की तजवीज पेश की। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 7,994 नए केसेस हुए दर्ज, 58 अफराद की हुई मौत।
30 अमल लॉकडाउन पर हुकूमत का संजीदगी से गौर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का जायजा इजलास। अद्वियात का ज़ख़ीरा न करने अवाम से अपील। क़वाइद पर सख्ती से अमल आवारी का मशवरा। कोरोना तेलंगाना में आइंदा 4 हफ्ते अहमियत के हामिल। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव। मास्क नहीं तो वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात। 2 कॉरपोरेशन और 5 म्यूनिसिपैलिटीज में 30 अप्रैल को रायदही, 3 मई को वोटों की गिनती। पार्थसारथी। गांधी हॉस्पिटल में नाशों के दरमियान इलाज से दहशत। आईसीयू में फौत होने वालों को मुंतकिल करने में इंतजामिया की गफलत व लापरवाही। तेलंगाना में ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पाने में हुकूमत कामयाब। दीगर रियासतों के अलावा दाखिली पैदावार में इजाफा। सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी भी हो गई कोरोना वायरस से मुतासिर। कांग्रेस पार्टी की कोविड टास्क फोर्स के सदरनशीन एम शशिधर रेड्डी ने वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र को मकतूब रवाना करते हुए गच्चीबौली हॉस्पिटल में बेकायदगियों की शिकायत। एमजीएम अस्पताल वरंगल में 21 घंटों के दौरान 27 अमवात। रियासती वजीर इर्राबली दयाकर राव का दौरा कोविड वार्ड। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।